अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोमिनीन तो फ़याल मदद अस्सलामु अलैकुम। क़यामत के दिन हर इंसान इमाम के साथ उठाया जाएगा, इसलिए इमाम पर ही ईमान और भरोसा करते हैं। गैर मासूम हादी मुकर्रर किया ही नहीं गया, ना गैर मासूम पे कोई भरोसा किया जा सकता है। उसको अपने सर का हाकिम और अपनी गर्दन उसके हाथ में नहीं दी जा सकती। तकलीद यानी ये पट्टा पहनना, ये गैर मासूम के लिए नहीं हो सकता। मासूम की बैत कर ली, अपना नफ्स मासूम को बेच दिया, ख़ुद को इमाम के मासूम के हवाले कर दिया, वही हुज्जत है, बस ये काफ़ी है। शेख यासिर अल हबीब मौलवी है, शिया है, तो मौलवी ही है ना, वैसे ही फ़िक्र काम कर रही है उसकी। शैतान के ओछे हथकंडे हैं कि वो जब ज़िना और शराब से लोगों को धोखा नहीं दे सकता, उन्हें राह हक से भटका और बहका नहीं सकता, तो वो नेकी को ही इस्तेमाल करता है। और बेमारिफत बेइल्म लोग उसके हाथ आ जाते हैं कि जिनके दिल आजमाइश में अली वाले यानी अली की विलायत वाले नहीं पाए जाते, राह हक की हिदायत के वो अहल नहीं होते, इस काबिल नहीं होते। तो अच्छी चीज़ें दिखा के शैतान फिर उन्हें बुराई की तरफ ले जाता है, ये दिखाकर कि यही रास्ता अच्छा है, यानी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला दिखाकर फिर उन्हें तकलीद की तरफ लेके जाता है। उन्हें तबर्रा करने वाला दिखाकर फिर विलायत अली से रोकता है। ये उसकी कमीनगी है, जबकि आले मोहम्मद पाक व पाकीज़ा है, हर नक़्स से मुबर्रा है। शेख यासिर अल हबीब उसने तकलीद वाली हदीस में गुमराही पैदा की है, उसका जवाब यही है। उसने उसमें कहा है, आप वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। الإمام أرجع إلى رواة حديثنا مو إلى الفقهاء. أنتم ليش تقولون فقهاء؟ نقول له أولا زين ماذا تفعل مع رواية العسكري عن الصادق عليه السلام؟ هناك فيها تصريح بوصف ماذا الفقهاء، وأما من كان من الفقهاء مو رواة حديثنا صحيح فالعوام يقلدوه. الإمام الحجة عليه السلام ما يخالف آبائه صحيح، لو كان المقصود من رواة الحديث غير الفقهاء فهذه يصير شنو؟ مخالفة. هذه ليست مخالفة، هذا أولا. ثانيا هؤلاء شوفوا من يعني قصر باعهم ما أدركوا أنه اصطلاح رواة حديثنا مو معناه مجرد إنسان راوي فيتحول إلى مجرد مذياع مسجل تخلي بيه الكاسيت ويشتغل، تضغط بلاي يشتغل يعطيك روايات، عرفتوا؟ لا، لابد يكون شنو؟ فاهم للروايات، متفقه في الروايات، يعرف معاني الروايات، وأن كل رواية في أي موضوع أيه منه متشابه أيه محكم. لا يكون مثل دول اللي مر معنا الآن في جوابنا على الأخ السائل اللي قبل أنه الإمام عليه السلام يقول لا هذول ما يستوعبون فممكن يفهمون كلامي هذا على أنه تشبيه فلا تحدثهم بهذا، عرفتوا؟ مو كل واحد يفهم كلام أهل البيت عليهم السلام، لازم الفقيه يفهم كلام أهل البيت. ولذلك روي عنهم عليهم السلام كما في معاني الأخبار أنتم أفقه الناس، شوفوا العبارة، أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. فإذا راوي للحديث بس مو فاهم الكلام شو نسوي بهذا؟ شلون أقدر أرجع له أصلا؟ هذا ما يعرف، أنا أرجع له أقول له يا عمي شنو الحكم في هذه المسألة؟ ما يعرف يعطيني الحكم، يقول أنا يا عمي أنا بس شنو؟ عن أسوي، أنا عن فلان أعطيك الرواية، يعني حالي مثل ما حال أنت تروح تاخذ لك كتاب وسائل الشيعة وتطلع الرواية، مثل ما تروح على الإنترنت وتطلع الرواية، أنا هذا اللي أقدر أسوي لك إياه. أنا مذياع بس أذيع لك الرواية. معقول الإمام يرجعنا إلى هذا؟ إذا كان الإمام عليه السلام يرجعنا إلى هذا يعني المراد إرجاعنا إلى الروايات، عرفتوا كما هم يزعمون هؤلاء. ليش الإمام أرجعنا إلى الرجال لا إلى الروايات؟ كان يكفي أن يقول فارجعوا فيها إلى رواياتنا، ما قال هكذا، ما قال فارجعوا فيها إلى رواياتنا وحديثنا، لأنه أيضا كان سهلا متيسرا إذا كان المراد أنه الإنسان يرجع إلى نفس الروايات. ارجعوا إلى رواياتنا وحديثنا معناه في ذلك الزمان تروح إلى الراوي تسأله تقول له اعطيني الرواية، فهمتوا؟ لأنه ما كان هناك ذاك الزمان يعني كتب متداولة بكثرة ولا إنترنت ولا ما أدري يعني فضائيات ولا هاي الوسائل الموجودة، فتروح راح تسأله يعطيك رواية فقط. مو هذا الذي يريده الإمام. شوفوا هذا من غبائهم، اصطلاح رواة حديثنا يعني فقهاء. उसने इस वीडियो में ये कहा है कि मौला ने फरमाया हमारी हदीस के रावियों की तरफ रुजू करो कि जो फ़ुक़हा हों यानी इल्म फ़िक़्ह रखते हों, फ़िक़्ह जानते हों, फ़िक़्ह की सलाहियत उनमें इस्तेदाद रखी गई हो, उन्हें ये इल्म दिया गया हो। यहाँ पहला झूठ वो ये बोलता है कि वो हदीस में फ़िक़्ह करते हों, फ़िक़्ह हदीस में रखते हों। हदीस अलग है, इल्म फ़िक़्ह अलग है। जो फ़क़ीह हों और हदीसों के रावी हों यानी अपनी मनमानी न करते हों, मौला ने ये फरमाया है। हदीस क्योंकि ख़ुद एक इल्म है, हदीस में गौर व फ़िक्र बरहक है, लेकिन हदीस मौला का अम्र है, तो वो अम्र पहुँचाने वाले ही मौला के बंदे हैं, मौला के ताबे हैं, उनके इताअत गुज़ार हैं, ये कहा गया है। हदीस की अपनी हिकमत है, जब मौला की हदीस पहुँचाई जाती है तो एक अम्र पहुँचता है, मौला का जो पैगाम है वो पहुँचता है, हिदायत पहुँचती है। इसलिए ये कहा गया है कि जो मौला के पैगाम के पहुँचाने वाले हों, तबलीग करने वाले हों, उन्हीं लोगों की तरफ लौटा जाए। यानी जब किसी से पूछा जाए
कि बहन से निकाह हलाल है या हराम है और वो कहे हराम है, तो वो मौलवी की तकलीद नहीं, मौलवी का मसला नहीं है, वो दीन का हुक्म है और मौला की इताअत है, मासूम की हुज्जत की इताअत है, खुदा नबी और इमाम का वो हुक्म और पैगाम है। इसी तरह मौला ने फरमाया जो हमारी हदीस का रावी हो, सिर्फ फ़क़ी ना हो और उसकी तरफ रुजू है फ़ुरूआत में, तो फिर कुल्ली तौर पर हदीसों में तकलीद नहीं है, हर बात के लिए तकलीद नहीं लाई जा सकती। यहाँ उसने ये गुमराही पैदा कर दी। दूसरे नंबर पर वो ये कह रहा है कि मर्दों की तरफ, ये लोगों की तरफ, रिजाल क्योंकि मर्द के लिए होता है, उनकी तरफ रिवायात और अहादीस की तरफ मौला ने नहीं कहा, लोगों की तरफ कहा है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बताइए कि अहादीस मर्दों से हैं या वो मर्द अहादीस से हैं? मौला ने ये नहीं फरमाया कि लोगों की तरफ जाओ, मौला ने फरमाया है कि जो हमारी हदीसें बयान करने वाले मर्द हों उनसे पूछो, उनसे बात करो। यानी आप अगर ये कह रहे हैं कि मर्दों की तरफ जाना है, उनकी तकलीद करनी है, लोगों की, मुज्तहिदों की माननी है, फुकहा की माननी है, तो जनाब ये भी तो आप हदीस से ले रहे हैं, ये किसी बंदे से तो नहीं ले रहे हैं ना। तो फिर हदीस की मानेंगे या लोगों की मानेंगे? गुमराह कर रहा है कि हदीस की तरफ न जाएं, अंधी तकलीद करें आंखों पे, नऊज़ु बिल्लाह। ये निजासत की, इनकार की, गुमराही की पट्टी बांध के इस फितने में पड़ के मासूम का रास्ता छोड़ के उस तरफ जाए, ये इसकी गुमराही का जवाब। और ये सवाल आलम तशय्यो से, फ़िक़्ह जाफ़र सादिक के मानने वालों से, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रियाया और उनके मुंतज़िर कहलाने वालों से, जिन्होंने इमाम के हाथ पे बैत का अम्र निभाना है और मौला का साथ देना है, क़यामत के दिन अपने इमाम के साथ उठाया जाना है। तो इमाम ने फरमाया है, उसूल काफ़ी की रिवायत तकलीद के बारे में कि यहूदियों के ईसाई और रहबान, वो अगर ख़ुद को खुदा कहते तो कोई ना मानता, उन्होंने खुदा को खुदा रहने दिया और हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दिया। आज ये वही हो रहा है। और ये जो शख्स है जो ये तावील पेश कर रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, ये कुफ्र जो पेश कर रहा है, इसमें यही तो किया जा रहा है कि मौला का अम्र छोड़ो। अगर ये खुद कहते कि हम इमाम हैं तो कोई ना मानता, इन्होंने इमाम को इमाम रहने दिया लेकिन हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया। इसलिए इनसे बचिए, अपने मौला के वफ़ादार होइए। मौला की मारिफत के बग़ैर जो मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया, इसलिए तकलीद नहीं, इमाम की मारिफत चाहिए। अस्सलाम या अली मदद।